હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ નામ સ્કૂલ જામનગર। તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટાન્ડર્ડ 8 ગુજરાતી મીડિયમ સબ્જેક્ટ હિન્દી એમાં પોએમ 1 તેરી હે ઝમી એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। તો મિત્રો, તેરી હે ઝમી એક પ્રાર્થના ગીત છે, બરાબર, કે જેમાં ઈશ્વર પ્રત્યેનો જે કૃતજ્ઞતાનો ભાવ છે એ વ્યક્ત કરવામાં આવેલો છે અને સાથે ઈશ્વર કે જે સર્વોપરિતા એટલે બધે જ વ્યાપેલો છે એ વાતનો અહીં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो चलो हम देखते आगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। શું કીધું પહેલી પંક્તિમાં કે ભગવાનને એમ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમે જ આ જમીનનું નિર્માણ કરેલું છે, આ આકાશ જે છે, આસમાન, એ પણ તમારું જ છે। તું બડા મહેરબાન એટલે તું અમારા પર ખૂબ જ મહેરબાન છો। તું બક્ષિસ કર, બક્ષિસ એટલે થાય ભેટ, બરાબર। ઝમી એટલે જમીન, આસમાન એટલે આકાશ, મહેરબા એટલે મહેરબાન, બક્ષિસ એટલે થાય ભેટ અથવા ઉપહાર, બરાબર। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। ત્યાર પછી બીજી પંક્તિમાં એમ કીધું છે કે ભગવાન છે તું બધાનો છો અને બધા જ તમારા છે। સભી તેરે હે, ખુદા મેરે એટલે એ ભગવાન તું અમને કાંઈક બક્ષિસ એટલે કે ભેટ આપ। જો આપણે એમ ન કહી શકીએ કે ભગવાન છે માત્ર હિન્દુ લોકોનો જ છે, મુસલમાનનો જ છે, બરાબર, કે જૈન લોકોનો કે ખ્રિસ્તી ધર્મનો, બધા જ લોકોનો ભગવાન છે। જેમ કે હિન્દુ ધર્મના કયા ભગવાન થાય? શ્રી રામ, શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર, કે જે મંદિરમાં રહેતા હોય તે। ત્યાર પછી મુસલમાન લોકો હોય તો એના કયા ભગવાન છે? અલ્લાહ, બરાબર। ત્યાર પછી જૈન લોકોના મહાવીર સ્વામી, ખ્રિસ્તી ધર્મના આપણે વાત કરી તો એના ઈસુ ભગવાન। તો બધાના ભગવાન તો છે જ, બરાબર, પણ ધર્મ અનુસાર આપણે એને અલગ અલગ નામથી ઓળખીએ છીએ, બરાબર। તેરી મરજી સે એ માલિક હમ ઇસ દુનિયા મેં આયે, જો ભગવાનની મરજી હોય તો જ એણે આપણને આ પૃથ્વી પર મનુષ્યનો અવતાર આપ્યો હોય, બરાબર। ભગવાનની મરજી હોય તો જ આ શક્ય છે અને ભગવાને આપણને આ ધરતી પર મોકલ્યા હોય તો કાંઈક એનો ઉદ્દેશ્ય કે કાંઈક હેતુ હોય છે અને એ હેતુને પૂર્ણ કરવા માટે જ આપણે આ પૃથ્વી પર જન્મ લઈએ છીએ, બરાબર। તેરી रहमत से हम सबने ये जिस्म ओ जा पाए हैं। तेरी रहमत से એટલે તારી કૃપાથી, रहमत એટલે થાય કૃપા, હમ સબને એટલે અમે બધાએ, ये जिस्म, जिस्म એટલે થાય શરીર, જા એટલે થાય પ્રાણ, બરાબર। જો આપણું શરીર છે એ મૃત હોય છે ક્યાં સુધી? કે જ્યાં સુધી એમાં કોઈ આત્મા એટલે કે એમાં પ્રાણ છે એનો વાસ ન થાય ત્યાં સુધી એ શરીર નિર્જીવ હોય છે। તો આ શરીરમાં પ્રાણ ઉમેરવાનું કાર્ય કે જે ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે એ કોણ કરે છે? ભગવાન, બરાબર। ભગવાનની કૃપાથી જ આપણે બધાએ શરીરમાં પ્રાણ છે એ મેળવ્યા છે। તું अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये भी खबर रखना। તું अपनी नज़र, ભગવાનને આપણે એમ કહીએ છીએ કે તું હંમેશા તારી નજર છે અમારા ઉપર રાખજે, એટલે કે અમે કાંઈ મુશ્કેલીમાં હોય તો તું અમારી મદદ કરવા આવજે, બરાબર। કિસ હાલ મેં હે, કિસ હાલ મેં એટલે અમે કઈ પરિસ્થિતિમાં છીએ, કેવી સિચ્યુએશનમાં છીએ અત્યારે અમે, તો એનું પણ તું ધ્યાન રાખજે, એટલે એ બી ખબર રખના। તેરી એ જમી તેરા આસમાં, તું બડા મહેરબાન તું બક્ષિસ કર। ચલો ત્યાર પછી આગળ આપણે વાત કરીએ।
तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका है सर, खड़े है आज हम सारे। તું ચાહે તો અમે રખે એટલે ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો જ એ આપણને રાખશે. તું ચાહે તો અમે મારે, ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો એ આપણો જીવ પણ લઈ શકે છે, બરાબર. અને કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ ક્ષણે તે આપણો જીવ લઈ શકે છે, એને કોઈ રોકી શકતું નથી. એટલે જ આપણને ભગવાનનો ડર લાગે છે. તેરે આગે ઝુકા હે સર, ખડે હે આજ હમ સારે. તેરે આગે ઝુકા હે સર એટલે આજે આપણે ભગવાનની સમક્ષ બધા એક સાથે ઊભા રહી અને શિર ઝુકાવીને ઊભા છીએ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો આપણને રાખે અને ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો આપણને મારે, બરાબર. એટલે જ આજે અમે બધા શિર ઝુકાવીને તમારી સમક્ષ ઊભા છીએ. ઓકે, ચલો. ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले. अरे भगवान के जो સૌથી વધુ તાકાતવાળા કહેવાય, સૌથી શક્તિમાન હોય, સૌથી વધુ તાકાતવાળા શક્તિવાળા તો એ કોણ છે? ભગવાન. એટલે જ કીધું છે એને કે ઓ સબસે બડી તાકત વાલે. તાકાતવાળા તો કીધું જ, પણ કેવા? સબસે બડી એટલે એના જેવી તાકાત શક્તિ છે બીજા કોઈ પાસે નથી જોતી. તું ચાહે તો હર આફત ટાલે. તું ચાહે એટલે તું જો ઈચ્છ તો આ બધી જ આફત મુશ્કેલી છે એને તું દૂર કરી શકશ. જેમ અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે કોરોનાને કારણે ચારે બાજુ ઘણા બધા લોકો છે એને પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. તો ભગવાન ઈચ્છે તો આ ભયંકર જે સંકટ છે એને પણ દૂર કરી શકે છે, એટલે કે રોકી શકે છે. એટલે જ આપણે આજે બધાએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આ રોગ છે જલ્દીથી ચાલ્યો જાય. તેરી એ ઝમી તેરા આસમાં, તું બડા મહેરબાન તું બક્ષિસ કર. હવે આપણે આના શબ્દ જોઈએ. બક્ષિસ એટલે ભેટ અથવા તો ઉપહાર અથવા ક્ષમા કરના. શબ્દાર એટલે થાય માલિક, જેને સ્વામી અથવા ઈશ્વર પણ કહેવાય. રહમત એટલે થાય કૃપા. આફત એટલે મુશ્કેલ. મહેરબાન એટલે કૃપાલુ, દયાલુ. જિસ્મ એટલે શરીર અને જા એટલે પ્રાણ. હવે આપણે એક બે પંક્તિ રાગમાં ગાઈ લઈએ, બરાબર. તેરી હે ઝમી તેરા આસમાં, તું બડા મહેરબાન તું બક્ષિસ કર. એનો રાગ શું થશે? તેરી હે ઝમી તેરા આસમાન, તું બડા મહેરબાન તું બક્ષિસ કર. સભી કા હે તું સભી તેરે, ખુદા મેરે તું બક્ષિસ કર. બરાબર. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે આ પોએમ જે છે આખી રાગમાં બોલી શકીએ. ઓકે, ચલો આગળ આપણે વાત કરીએ. અભ્યાસ. એમાં क्वेश्चन नंबर 1 તમને આપેલો છે. यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो उसमें क्या आंसर आएगा? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा भी नहीं सकता. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें. लोग किस हाल में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कौन सा है? आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ. यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है. चलो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा कौन सा है? भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं?
तो चलो हम लिखते हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। जिसमें कुछ वर्ड दिए गए आपको, हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर, धरा। चलो हमें मालूम है कि शब्द क्रॉस के क्रम के अनुसार हम बात करें तो सबसे पहले हम स्वर लेंगे। स्वर में अ स्वर आपको मालूम ही है, कौन कौन से हिंदी में स्वर है? अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, इसके जरिए अब क्या आता है? रू भी। उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, हम और अह। ये क्या है? हमारे स्वर। और व्यंजन की मैं बात करूँ तो क से लेके ज्ञ तक सभी व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ वो सभी हमारे क्या है? व्यंजन। चलो सबसे पहले शब्द क्रॉस के क्रम के अनुसार आपको बताया गया हो तो हम स्वर से जो शुरू होता है ना वो वर्ड पहले लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट में क्या आएगा इनमें से? उज्ज्वल, उसके बाद और, उसके बाद क्षमता, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद दूध, दूध के बाद दृष्टि, दृष्टि के बाद धन, धन के बाद धरा, धरा के बाद नाविक, उसके बाद मंदिर, उसके बाद मनुष्य, उसके बाद मित्र, उसके बाद योद्धा, उसके बाद शांति, उसके बाद श्रृंखला, उसके बाद सुख, उसके बाद स्वर, उसके बाद लास्ट में आएगा हृदय। ओके, तो इस तरह हमें निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तो वो आपको बनानी है। ओके, इनसे हमें कोई भी पोएम बनानी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। चलो हम देखते हैं। चलो सबसे पहले क्या आएगा? मैंने कविता लिखी। तो इस वाक्य में हमें क्या करना है? वचन को बदलना है। जैसे कि मैंने, तो उसका बहुवचन में करूँ तो हमने, हमने कविता की जगह कविताएं, क्योंकि एक पोएम थी तो कविता बोलते हैं, बराबर। कई सारी हो तो कविताएं। और लिखी
तो लिखी ऐसे ही आएगा, लेकिन इसके ऊपर डॉट भी करना है, उसके बाद खड़ी पाई। चलो नेक्स्ट, यह मेरी किताब है, तो यह का प्लूरल क्या होता है, ये, और मेरी की जगह हमारी प्लूरल करना है उसका, यानी कि बहुवचन। किताब एक है, तो मेरे पास कई सारी किताबें हो तो मैं क्या बोलूँगा, किताबें, और है ऐसे ही रहेगा, और ऊपर डॉट, और इधर खड़ी पाई। चलो थर्ड है, इसे लड्डू दे दो, तो इससे की जगह मैं क्या करूँगा, इन्हें, ऊपर डॉट, इन्हें लड्डू दे दो। ओके, चलो अब हम स्वाध्याय में बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। चलो, कवि ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में है उसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली हर आफत को वो दूर कर सके। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और यह प्राण मिले हैं। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र यानी कि कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों। कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। फिर से एक बार बोलता हूँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। चलो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि खुदा से, इधर खुद नहीं आएगा, इधर खुदा आएगा। कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। चलो, हे ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो चलो उसके लिए कौन सी पंक्ति आई थी हमें, चलो, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओझा पाए है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो इतना आपको लिखना है फर्स्ट पंक्ति में। उसके बाद हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। चलो उसके लिए कौन सी पंक्ति है,
तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। इतना आपको लिखना है सेकंड क्वेश्चन की पंक्ति में। चलो उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। तो इधर क्या आएगा? थर्ड हमें पंक्ति लिखनी है, जो भी देखे खुश हो जाए। उसके बाद कोमा, ऐसी न्यारी मेरी गाय। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होगी, ऐसी कोई और प्रार्थना लिखो जो कि किसी फिल्म में हो। तो एनी આપણે જરૂર નથી કરવાની। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। આ આખું કાવ્ય તમારે ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનું છે। ચલો હું બોલું છું। हे ईश्वर, અમે તારા ભક્ત છીએ। અમારા કર્મ એવા હોય કે પ્રામાણિકતાથી વર્તીએ અને બુરાઈથી દૂર રહીએ, જેથી હસતા હસતા મારા પ્રાણ નીકળે। આ સઘન અંધકાર છવાઈ ગયો છે, તારો મનુષ્ય ડરી રહ્યો છે, સર્વથી અજાણ બની ગયા છે અને તેમને કશુંય નજરે પડતું નથી। સુખનો સૂર્ય છુપાઈ ગયો છે, તારા પ્રકાશમાં એવી શક્તિ છે કે તું અમાસને પૂનમ બનાવી શકે છે। મનુષ્ય તું અમાસને પૂનમ બનાવી શકે છે। મનુષ્ય ખૂબ નિર્બળ છે, હજી તેનામાં લાખો શક્તિઓ છે, પરંતુ જે વિદ્યમાન છે અને ખૂબ દયાળુ છે। તારી કૃપાથી ધરતી સ્થિર છે, તે અમને સૌને જન્મ આપ્યો છે। તું અમારા સૌના દુઃખ સહન કરશે। જ્યારે અત્યાચારનો સામનો કરવાનો હોય ત્યારે તું જ અમને સંભાળી લે છે। તેઓ બુરાઈ કરે અને અમે ભલાઈ કરીએ, અમારામાં બદલો લેવાની ભાવના ન હોય। અમે દરેક પગલું પ્રેમનું ભરીએ અને વેર લેવાનો ભ્રમ દૂર થાય। ત્યાર પછી वचन परिवर्तन। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ताला तो ताले, लड़का तो लड़के, घोड़ा तो घोड़े, बेटा तो बेटे, कमरा तो कमरे, छाता तो छाते, तोता तो तोते, रुपया तो रुपये। उसके बाद रात तो राते, बहन तो बहने, किताब तो किताबें, भैंस तो भैंसे, दीवार तो दीवारें, आँख तो आँखें, सड़क तो सड़कें, बात तो बातें। ત્યાર પછી લતા તો લતાએ, કન્યા તો કન્યાએ, બાલા તો બાલાએ, મહિલા તો મહિલાએ, सेवा तो सेवाएं, बालिका तो बालिकाएं, भाषा तो भाषाएं, पाठशाला तो पाठशाला है। त्यार पछी तिथि तो तिथियाँ, विधि तो विधिया, लिपि तो लिपिया, जाति तो जातियाँ, पंक्ति तो पंक्तियाँ, नीति तो नीतियाँ। त्यार पछी सखी तो सखिया, खिड़की तो खिड़कियाँ, मछली तो मछलियाँ, चीटी तो चीटियाँ, डाली तो डालियाँ, कली तो कलियाँ, पुड़िया तो पुड़ियाँ। इसमें ऐसा करना है, चंद्र बिंदी जिसको कहते हैं। चूहिया तो चूहिया, बुढ़िया तो बुढ़िया, चिड़िया तो चिड़िया, डिबिया तो डिबिया, गुड़िया तो गुड़िया। उसके बाद वस्तु तो वस्तुएं, धेनु तो धेनुए, ऋतु तो ऋतुए। उकारांत शब्द में लिखना है तो वधु तो वधुए, जू तो जुए। औकारांत जिसमें गौ तो ओ आया, इधर ऊ आया था दीर्घ ऊ, और इधर ऊ आया था हस्व ऊ। ओके। गौ तो गोए, प्रजा तो प्रजाजन, पाठक तो पाठकगण, लेखक तो लेखक वृंद, मजदूर तो मजदूर वर्ग, गुरु तो गुरुजन, श्रोता के लिए श्रोतागण, अध्यापक तो अध्यापक वृंद,
शिक्षक तो शिक्षक वर्ग, छात्र तो छात्रगण, कवि तो कवि गण। चलो उसके बाद आपको क्या करना है, नदी तो नदियाँ, किताब तो किताबें, बराबर। दरवाजे तो दरवाजा, कला तो कलाए, कौवा तो कौवे, धातुए तो धातु, सड़के तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते। ओके, चलो उसके बाद क्या करना है, उपसर्ग पढ़िए और समझिए। इधर आपको निर्गुण, दुर्गुण, सगुण, अवगुण ऐसे वर्ड दिए गए हैं, बराबर। जैसे कि संयोग, प्रयोग, वियोग, उपयोग, तो इसमें क्या है, योग सभी में आता है। इधर हम देख सकते हैं। विदेश तो इसमें देश सब में आता है, स्वदेश, उपदेश, विदेश, अनुदेश। ओके, चलो दुर्गुण तो दुर वता गुण, स इसमें गुण डालो सगुण, प्र में योग डालो तो प्रयोग, वि में योग डालो वियोग, स्व में देश डालो स्वदेश, उप में देश डालो उपदेश, निर में गुण डालते हम तो निर्गुण, अव में गुण तो अवगुण, सब में योग तो संयोग, उप में योग डालो तो उपयोग, वि में देश डालो तो विदेश, अनु में देश डालो तो अनुदेश। आगे तो दूर, निर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का इस तरह निर्माण होता है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हम इधर देखा कि दुर, इसमें मैंने गुण डाला तो ये क्या हुआ, दुर्गुण एक शब्द इधर बनता है। तो आगे जो ये वर्ड आता है ना उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। ओके, तो फ्रेंड्स इधर हम पोएम 1 फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नए वीडियो देखेंगे। थैंक यू।